Hello, good morning and welcome, my dear students. It is your English teacher, Prabhat Sharma, with you once again, your friend, philosopher, guide, and mentor, your guardian, and always ready to help you. Today, we will be highlighting the main points of the lesson Glimpses of India, Part 3, the tea from Assam. The whole section can be summarized into 10 main points. So, what are those 10 main points? Let us see one by one. Okay, the first one, Pranjal and Rajveer are traveling to Assam by train. I shall repeat, Pranjal and Rajveer are traveling to Assam by train. I hope all of you might have done some long journey by train. And if you haven't got a chance, please, whenever you get a chance, do enjoy a long journey by train. It will be a memorable lifetime experience for you. So Pranjal and Rajveer are traveling to Assam by train. Second point, Rajveer is enjoying the beautiful scenery outside as the train is running. There is greenery everywhere as far as the eye can see. I shall repeat. Rajveer is enjoying the beautiful scenery outside the train as the train is running. There is greenery everywhere as far as the eyes can see. Question number 3. The greenery gives place to tea bushes. The greenery, point number 3, gives place to tea bushes. Slowly, they reach Assam. And they are traveling through Assam. And there are tea bushes all over. As the eyes can see throughout the windows of the tree. So he is looking outside and he can see only tea bushes all over. Fourth, Assam tea gardens are famous all over the world as it has the largest of plantations. Assam tea gardens are famous all over the world as it has the largest plantations. Fifth, the Chinese are said to have discovered tea. So the Chinese have to be given the credit of discovering tea. Sixth, there is also an Indian legend saying that Bodhidharma discovered tea. So there is also an Indian legend. And what is the Indian legend? It says that Bodhidharma, a Buddhist monk, who happened to discover the tea, it's through him that tea came to the world. Point number 7. From China, tea went to European countries and then to countries in Asia. So from China, it went to European countries and then came back to Asia and the countries like India. 8th point, Pranjal's father is the manager of Dekiabari, a tea garden. So he is manager over a tea estate. 9th, groups of tea pluckers are plucking tea leaves. It is hand plucked. Okay. So groups of tea pluckers are plucking the tea leaves. And the last one, the sprouting period lasts from May to July, yielding the best tea, learns Rajveer. I shall repeat the last point, point number 10. The sprouting period lasts from May to July, yielding the best tea, learns Rajveer. And he is ready to learn more and more about tea.
and more about Assam. So, guys, these were the main points which are to be highlighted. You can see the word meanings also. Traditional means conventional, रीति रिवाजों के हिसाब से. Okay. Vanish मतलब to disappear. And there are several other words. New words which you can see. Yields means gives out. Meditations mean deep thoughts or cognitions. Now today we will see an animated video on the same topic. So my dear students, let's watch a video on the tea from Assam, which is giving line by line explanation to you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट को, जिसका टाइटल है टी फ्रॉम असम। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल जो एक यंगस्टर है और वो असम से है, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। वो राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली में। प्रांजल्स फादर इज द Sorry for interruption, just wait for 2 minutes. We'll see what has happened now. Yeah, it's going on well. Some technical errors arised. Hello, here again we are with the third story of this lesson, Glimpses of India. इंडिया की झलक की तीसरी कहानी, टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। असम इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में फेमस है टी के लिए। कुर्ग में हमने कॉफ़ी के बागानों के बारे में पढ़ा था, और बेकर फ्रॉम गोवा में हमने गोवा की बेकरी के बारे में पढ़ा था जो पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस की थी, और आज भी इस ओल्ड ट्रेडिशन को कैरी ऑन करने वाले लोग वहाँ पर हैं। तो आइए हम इस टॉपिक पे चलते हैं। टी फ्रॉम असम। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम। तो असम का रहने वाला है प्रांजल, इज राजवीर क्लासमेट। तो राजवीर एक और है और उसकी क्लास में ये पढ़ता है प्रांजल। तो दोनों के दोनों क्लासमेट हो गए, एक ही क्लास में पढ़ने वाले। एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली में पढ़ते हैं लोग। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन। तो टी गार्डन हुआ करते हैं, बड़े बड़े जो बागान होते हैं उन्हें टी गार्डन कहा जाता है। तो उसके मैनेजर थे किसके पिताजी? प्रांजल के पिताजी। इन अपर असम, तो असम भी अपर असम, लोअर असम के रूप में जाना जाता है, पहाड़ी इलाका है। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने राजवीर को इन्वाइट किया है टू विजिट हिज होम, कि वो उसके घर आए ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो भाई छुट्टियाँ पड़ती हैं समर वेकेशन में, तो लोग घूमने जाते हैं यहाँ वहाँ। तो प्रांजल ने कहा अपने मित्र राजवीर को कि हमारे यहाँ आ जाओ घर पर समर वेकेशन में। चाय गरम गरम चाय। ओ, तो इसका मतलब ये लोग स्टेशन पे, ये चैंटिंग वहाँ पे होती रहती है। हालांकि कॉफ़ी के मामले में हम नहीं सुनते कि कॉफ़ी गरम। एनीवे, गरम चाय। अ वेंडर, जो फेरी वाले होते हैं, मीन्स घूम घूम के सामान बेचते हैं। खार्ड आउट, तो तेज़ आवाज़ में बुलाना, कहना। इन हाई पिच्ड वॉइस, मतलब पिच आवाज़ को ऊंची करते हुए। चाय गरम चाय, तो देखिए पिच चाय पे हाई पिच वॉइस रहती है। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, तो वो जो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी होगी तो उनकी खिड़की तक आया और उसने कहा, चाय साहब चाय। गिव अस 2 कप्स, 2 कप दे दो, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, तो लिक्विड यहाँ पे टी के लिए है जो वहाँ पे वो लोग पी रहे हैं। हालांकि टी के लिए हम लोग ड्रिंक की बजाय सिप शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। टी इज सिप्ड नॉट ड्रिंक। ऑलमोस्ट, लगभग एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट, तो जो डिब्बे होते हैं ना गाड़ी के, उनको कंपार्टमेंट कहा जाता है। तो जो भी वहाँ पर कंपार्टमेंट में था, उनके बैठा हुआ था, वॉज ड्रिंकिंग टी टू। सब चाय पी रहे थे। अब क्या करें, नहीं भी मन होता है थोड़ा मूड बदलने के लिए, चाय पी लेते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, आप जानते हो कि लगभग 80 करोड़ कप चाय के आर ड्रंक पिए जाते हैं।
ये थर्ड फॉर्म है, और जब आप किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी होती है। और ये पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस है, और देखा जाए तो टी के बाद आ रहा है, और टी तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये कप्स है, ये आर कप्स के लिए आया है, कप्स आर ड्रंक, और कप्स में क्या होता है, टी होती है। एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर में 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप चाय लोग पीते, राजवीर ने कहा। फ्यू, देखिए ये फ्यू का अपोजिट है। फ्यू हम जनरली अगर हम हिंदी में इस एक्सक्लेमेशन का काउंटर पार्ट ढूंढें तो हम कहेंगे छी छी, इस तरह से फ्यू, तो यहाँ पे फ्यू, तो थोड़ा आश्चर्यचकित होके, और तो यहाँ पर मैं ये फिट करता हूँ। प्रांजल ने कहा, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, क्या टी वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट, अब स्टेशन से बाहर निकली ना, स्टेशन से बाहर निकली ट्रेन। प्रांजल वरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, वैसे एक इडियम है कि हैव योर नोज बरीड इन बुक, मीन्स पढ़ते हुए नजर आना, वो भी ध्यान से। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट, अर्डेंट मतलब वेरी पैशनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, तो उसे जासूसी कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो उसी में डूब जाता था पढ़ने में। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस वक्त, मतलब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ही वॉज कीनर, कीन से बना है, कीनर मतलब उत्सुक, ईगर जानने के लिए, जिज्ञासु, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, तो इस वक्त तो ब्यूटीफुल सीनरी देखने में व्यस्त था ये। तो प्रांजल तो पढ़ रहा है और राजवीर सीनरी देख रहा है, हालांकि उसे डिटेक्टिव स्टोरीज अच्छी लगती है, लेकिन इस वक्त उनको नहीं पढ़ रहा है। ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा तो देखा होगा कि सिटी से बाहर होते ट्रेन को टाइम नहीं लगता, उसके बाद वो सीनिक ब्यूटी से ही पार होती है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरापन नज़र आ रहा था, क्योंकि इधर दाएं बाएं आप देखें तो खेती नज़र आते हैं, जिस प्रकार की खेती, जिस तरह खेती या बागान होंगे तो बागान नज़र आएंगे जहाँ से ट्रेन गुजरेगी, या फिर पहाड़ नदियाँ नज़र आएंगी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ऑफ ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इस तरह की ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, तो हरे हरे मुलायम जो पेड़ होते हैं पैडी के, मतलब धान की खेती जब होती है, समर में होती है खेती नॉर्थ इंडिया में, असम में भी होती है, असम में भी तो मैदानी इलाका है, आपने नदर्न प्लेन्स को पढ़ा होगा तो देखिए किस तरह से वो स्ट्रेच करता हुआ चला जाता है असम में। फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, अब उसके बाद खेत खत्म हुए धान के और असम में प्रवेश कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल से गुजर रहे हैं और कहीं से भी अब टी बुशेस शुरू हो गई, मतलब कि चाय के बागान और उनकी जो झाड़ियाँ होती हैं टी की, वो शुरू हो गई। गिव वे का पास्ट टेंस, गिव वे मतलब जब आप किसी के लिए रास्ता बना देते हैं, तो वही लिखा है कि पैडी फील्ड्स ख़त्म हुई और टी बुशेस शुरू हुई। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, बड़ा शानदार भव्य नज़ारा था जब टी बुशेस शुरू हुई। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली, मतलब नज़दीक नज़दीक वुडेड हिल्स, तो बैकड्रॉप का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि उसके बैकग्राउंड में, जैसे आप कैनवस देखते हैं तो आपको इमेज नज़र आती है, तो इमेज के पीछे का जो भी बैकग्राउंड होता है लैंडस्केप, तो उस बैकड्रॉप में नज़दीक नज़दीक पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी और जिनमें पेड़ थे, मतलब पहाड़ियों के जंगल। अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेस्ड, और वहीं पे समुद्र सा नज़र आ रहा था, चारों तरफ टी बुशेज ही नज़र आ रही थी, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक समुद्र था पूरा चाय के बागानों का। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है कि जब आप जाएंगे और चाय के बागानों को देखेंगे तो आपकी आँख जहाँ तक देख सकेगी आपको सिर्फ टी बुशेज ही नज़र आएंगी। ड्वाफिंग द टाइनी टी, देखिए ड्वाफ का मतलब होता है छोटा, पौना, और ड्वाफिंग यहाँ पे वर्ब है तो छोटा कर देना, पौना बना देना। द टाइनी टी प्लांट्स, तो छोटे छोटे जो टी प्लांट्स हैं वर टॉल स्टर्डी सेड ट्रीज, तो इन जो टी बुशेज है छोटी छोटी, तो उन्हीं के बीच बीच में पेड़ भी थे जो टी प्लांट्स को छोटा बना दे रहे थे। एंड अमिडिस्ट मतलब बीच में, द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, तो जो बुशेस टी की प्लांटेशन की जो थी तो उनकी रोज़ में बीच बीच में पेड़ भी थे। विजिली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, तो ऐसा लगता था जैसे डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रही हैं, तो जैसे टाइनी टाइनी प्लांट्स हैं लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जब बीच बीच में पेड़ होंगे, बीच में पेड़ होंगे, तो ये झूमते थे, तो ऐसा लगता था जैसे डॉल्स झूम रही है। कितनी भी बड़ी लकीर हो लेकिन आपने उससे भी बड़ी लकीर खींच दी तो ये ड्वार्फ हो जाएगी, शॉर्टर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टाइनी प्लांट्स जो टीके हैं और जो पेड़ लगे हुए हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, उसके बाद वहाँ पे एक अगली बिल्डिंग दिखाई दी, भाई बिल्डिंग इन्हें पसंद नहीं आई। विद स्मोक बिलोइंग, देखिए बिल्लो का मतलब यहाँ पर जो धुआं निकलता है चिमनी से और निकलने के बाद जो बड़े बड़े गुबार में वापस बड़े बड़े हवा में चला जाता है बादल बनाते हुए, तो वो बिल्लो है।
हवा में फूलता हुआ फिर निकल जाता है। और आपके घरों में पर्दे वगैरह लगे रहते हैं, तो कभी हवा आती है तो देखिए पर्दा अपने आप ऐसे आता है, फूलता है, हवा भर जाती है यहाँ पे। और कभी हवा उस तरफ को जाएगी तो फिर इस तरफ को चला जाएगा, इस तरफ थोड़ा सा फूल जाएगा, तो इसको भी हम कहते हैं बिलोइंग, द कर्टेन्स बिलोड। तो चिमनी से धुआं बाहर निकल रहा था। चिमनी सबसे ऊपर होती है, किसी भी मकान में ऊपर लगी होती है, तो इसमें से धुआं निकलता है। तो वहाँ पे जो फैक्ट्री होंगी टी गार्डन में, जहाँ पे चाय और कुछ प्रोसेसिंग होती होगी, तो वो उस अगली बिल्डिंग को दिखा रहे हैं। तो धुएं से इसको रिलेट कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग अच्छी कहाँ नज़र आएगी। हे टी गार्डन, तो उसने कहा हे टी गार्डन, देखो टी गार्डन। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर चिल्ला के बोला। देखिए यहाँ पे ना खूब उत्साहित होके, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं और आपका पसंदीदा खिलाड़ी आता है तो कितने खुश होते हैं, और जब वो बैट को घुमाता है तो आप उम्मीद से छक्का चौका भले लगे न लगे, तो एक एक्साइटमेंट नज़र आ रहा है राजवीर के अंदर। टी गार्डन को देखा। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ टी प्लांटेशन, तो प्रांजल के लिए तो कोई नई बात नहीं थी। ब्रिंग अप का पास्ट टेंस ब्रॉट अप, तो जो वहीं पे पला बड़ा था। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को पाल पोस कर बड़ा करना, परवरिश करना। ऑन अ प्लांटेशन, तो उसके लिए तो नई चीज़ नहीं थी। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, तो राजवीर का जो भी एक्साइटमेंट था उसे उसने शेयर नहीं किया, मतलब उसने भी उसकी हाँ में हाँ या उसकी एक्साइटमेंट में अपनी एक्साइटमेंट को मैच नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, अच्छा तो ये भी टी कंट्री में। देखिए कुर्ग को हमने कॉफ़ी कंट्री कहा, और इधर असम में आ रहे हैं तो टी कंट्री हो गया। ही सेड असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम दुनिया भर में टी प्लांटेशन का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन माना जाता है। देखिए कोई चीज़ कहीं पे इकट्ठा हो जाती है तो कंसंट्रेशन बन जाता है। तो ये माना जाता है कि दुनिया भर में चाय के बागानों की संख्या अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा असम में है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो ये प्रांजल उसे बताता है कि अब असम दुनिया में सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशंस के रूप में जाना जाता है। लिखा है ना दिस इज टी कंट्री नाउ, अब इसे टी कंट्री कहा जाता है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैं टी के बारे में पढ़ता भी रहा हूँ, मतलब कुछ जानकारी लेता रहा हूँ। राजवीर सेड नो वन रियली नोज, लेकिन कोई नहीं जानता। हु डिस्कवर टी, टी की खोज किसने की। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सी लीजेंड्स हैं। देखिए कोई भी किस्से कहानी जो सदियों से चले आ रहे हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, लोगों के मुंह से, एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, तो लीजेंड बन जाती है। अगर आप हिंदी मीनिंग देखोगे तो पौराणिक कथाएं नज़र आएंगी, दंत कथाएं नज़र आएंगी, या जो बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं तो आगे चल के वो भी लीजेंडरी फिगर्स बन जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, लता मंगेशकर हैं, ये लोग जीते जी लीजेंड बन चुके हैं, तो ग्रेट फिगर्स। तो देखते हैं टी से रिलेटेड क्या कहानी है। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी लीजेंड्स। अब देखिए यहाँ पे टी प्लांटेशन पर उसका पालन पोषण हुआ। अब देखिए प्रांजल की परवरिश टी प्लांटेशन पर हुई, यानी कि उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, राजवीर के लिए चीज़ नहीं थी, लेकिन प्रांजल को उससे रिलेटेड लीजेंड्स के बारे में पता ही नहीं है कि टी ओरिजिनेट कैसे हुई, उसका बर्थ प्लेस कौन सा है। तो इसलिए उसने कहा व्हाट लीजेंड्स। वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। एक लीजेंड तो इस प्रकार से है कि एक चाइनीज़ एम्परर था, मतलब चीन का सम्राट, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो कि पानी उबाल कर पिया करता था। वैसे कहीं पे भी पढ़ने को मिलता है कि एम्परर ने घोषित किया था अपने पूरे साम्राज्य में कि लोग उबाल कर पानी पिए, खुद भी उबाल कर पानी पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। तो एक दिन जो टहनियाँ जल रही थी, मतलब जो आग में लगी हुई थी जो टहनियाँ, तो उनकी कुछ पत्तियाँ किसी तरह से उस बर्तन में आके जिसमें पानी था गिर गई। और कहीं पे भी पढ़ने को मिलता है कि आसपास के पेड़ों से उड़ती हुई कुछ पत्तियाँ आकर उस पानी में चली आई थी जो वाटर उबल रहा था, गिविंग इट डेलिशियस फ्लेवर। तो बड़ा स्वादिष्ट फ्लेवर, स्वाद बन गया उसका। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियाँ चाय की पत्तियाँ थी। वैसे जो भी टी की हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है तो लगभग 5000 साल पहले, यानी 2750 के आसपास ऐसा कहा जाता है कि जो चाइनीज़ एम्परर था शेन नुंग के नाम से, तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जो कि पानी वो उबाल रहा था। तो ये घटना घटी, और इसीलिए जो सुन नेंग एम्परर है उसे ये भी कहा जाता है कि द फादर ऑफ टी। तो टी का बर्थ प्लेस चाइना है, खासकर उसका जो यूनान प्रोविंस है। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड, स्कॉफ मीनिंग जैसे किसी की हंसी उड़ाते हुए, इन अ मोकिंगली मैनर, कि उसे हंसी आ रही थी कि क्या टी इस तरह से ओरिजिनेट हुई होगी, क्या इस तरह से टी की डिस्कवरी हुई होगी। तो विश्वास नहीं कर रहा था ना, तो इस तरह की बातें पर उसे हंसी आ रही थी। अच्छा और बताओ इस तरह से। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू,
हमारे यहाँ एक इंडियन लीजेंड भी इससे जुड़ा हुआ है, बोधि धर्म। दरअसल बोधि धर्म जो बुद्धिस्ट मॉन्क था, सन्यासी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला, एन एंसेंट बुद्धिस्ट एसिटिक, तो एसिटिक सन्यासी हो गया। कट ऑफ हिज आईलिड्स, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली थी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वो मेडिटेशन में थे, मतलब ध्यान मग्न थे। ऐसी स्थिति में उनका ध्यान भंग हुआ होगा, जब वो सो गए अचानक नींद आ गई, तो उस पर पश्चाताप करते हुए रिग्रेटिंग, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स को ही काट दिया कि अब नींद नहीं आएगी, जब आंखें बंद नहीं होंगी तो नींद कहाँ से आएगी। और ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि 9 साल तक लगातार वो मेडिटेशन में थे और फिर स्लीपी हो गए। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, तो जहाँ पर वो आईलिड्स गिरी, आँखों की जो पलकें हैं वो गिरी, तो वहाँ पर पेड़ उगाए, मतलब प्लांट उगाए, और यहाँ पे 10 संख्या बताई गई है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब इन्हें हॉट वाटर में डाला गया, एंड ड्रंक, और जब इन्हें पिया गया, बैनिस्ड स्लीप, तो बैनिस्ड माने गायब हो जाना, खो जाना, तो नींद खो गई। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नींद आ रही हो तो चाय पी लो, नींद दूर हो जाएगी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, तो सबसे पहले चाय चाइना में ही पी गई। शुरू में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए टी फेमस थी, लेकिन बाद में उसे एक बेवरेज के तौर पर यूज़ किया गया। राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा, एज फार एज बैक 2700 BC, जो मैंने आपको डेट बताई थी। इनफैक्ट वास्तव में वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी, ये सब चीन से ही आए हैं शब्द। टी केम टू यूरोप, फिर वो टी यूरोप तक पहुंची, ओनली इन द 16th सेंचुरी, वो भी जाके 16th सेंचुरी में। तो बताइए, काफ़ी दिनों के बाद 2700 BC के लगभग ओरिजिनेट हुई और 16th सेंचुरी में पहुंची, तो आप 2700 में 1600 ईयर्स और जोड़ लीजिए। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज, और मेडिसिन के तौर पर उसे यूज़ किया जाता था, बेवरेज के तौर पे नहीं। देखिए, बेवरेज कोई भी पेय पदार्थ है, वाटर को छोड़ के कोई भी लिक्विड जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। द ट्रेन क्लटर्ड इनटू, ये साउंड हो गई, इनटू मैरियानी जंक्शन, तो जहाँ पे रेलवे लाइंस आके मिलती हैं, मतलब सीधी रेलवे लाइन जा रही है तो कोई जंक्शन नहीं है, तो और भी रूट से आके मिलती हैं तो जंक्शन बन जाता है, मीटिंग पॉइंट। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, तो उन्होंने अपने सामान उठाए। लगेज में कभी भी आपको एस नहीं लगाना चाहिए, इसका प्लूरल एस लगा के नहीं बनता। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी, तो वहाँ से अपना रास्ता बनाते हुए वो लोग आगे निकले। प्रंजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रंजल के जो पेरेंट थे वो उसका इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों का। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकियाबारी, तो वहाँ का प्लेस का नेम है ये, तो वो लोग गाड़ी से जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रंजल्स फादर, तो ये धेकियाबारी टी गार्डन है और इसको मैनेज करते थे प्रंजल के पिताजी। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद द कार बियर्ड, देखिए बियर्ड का मतलब होता है सडन टर्न लेना, मुड़ जाना, डायरेक्शन को चेंज करना। शार्पली ऑफ द मेन रोड, तो मेन रोड से हट कर किसी दूसरे रास्ते पे मुड़ गई गाड़ी उनकी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उसके बाद उन्होंने कैटल ब्रिज पार किया। देखिए, कोई भी खासकर गांव देहात में जो खेत के बगल से जो नहरें गुजरती हैं, तो अब आपको इस पार से उस पार जाना है तो एक ब्रिज बना दिया जाता है, वो किसी भी तरह से बना देते हैं आप, तो उसमें से आदमी भी जा सकते हैं, जानवर भी जा सकते हैं, तो कैटल ब्रिज हो गया। इसे आप उस तरह का ब्रिज मत समझिए जो बड़ी बड़ी नदियों पर बनाया जाता है। तो उस प्रकार से धेकियाबारी टी स्टेट में लोगों ने प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, तो भाई ग्रेवल रोड आप समझ गए, ग्रेवल कंकड़ पत्थर छोटे छोटे, तो उस रोड पर गुजरते हुए एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, कई एकड़ तक फैली हुई टी बुशेस नज़र आ रही थी। अच्छा, जो टी बुशेस होती है ना, ये ऐसा नहीं कि प्रतिवर्ष बोई जाती हों, 100 ईयर्स तक ये टी बुशेस रह सकती हैं। ऑल नियरली प्रून टू द सेम हाइट, और सबको, प्रून मतलब कि लगभग काट छाँट के बराबर कर देना, पेड़ों की कटाई छटाई, टू द सेम हाइट, सबको सेम हाइट पर रखा जाता है। आपने कहीं पे भी हैज देखी होंगी, तो हैज की जो बाउंड्री होती है वो कितनी बराबर ऐसे काट छाँट के बनाए रहते हैं, कुछ लोगों को कितना अच्छा शेप दे देते हैं झाड़ियों को। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और वहाँ पे कुछ टी प्लकर्स नज़र आ रहे थे जो पत्तियाँ होती हैं मुलायम, न्यूली ग्रोथ टी गार्डन में, उनको तोड़ती हैं विद बम्बू बास्केट्स, और पीछे उनकी बड़ी सी बड़ी बास्केट लटकी होती है बांस की बनी हुई। ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और एप्रन पहना होता है उन्होंने सामने, जिससे कि कपड़े गंदे ना हो। और प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, तो जो नई नई जो अंकुरित लीव्स थी उन्हें तोड़ते हुए। अगर आपके आसपास छोटा मोटा गार्डन होगा, आपने कोई पेड़ लगाया होगा कोई भी, तो आप देखते होंगे उसमें जो नई पत्तियाँ होती हैं ऊपर निकलती हैं, फिर वो पुरानी हो जाती है, फिर नई पत्तियाँ ऊपर निकलती रहती है, तो इस तरह से ग्रोथ होती है प्लांट्स की। प्रांजल फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, तो प्रांजल के पिताजी जब गाड़ी चला रहे थे तो थोड़ा सा धीमे से हुए, बगल से ट्रैक्टर को गुजरना था ना। पुलिंग अ ट्रेलर लोड, तो उसकी जो पीछे ट्रेलर था उसमें कुछ सामान भरा हुआ था और टी लीव्स भरी हुई थी, तो उसको पास दिया उन्होंने कि वो गुजर जाए। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, तो देखिए सेकेंड फ्लश
और स्प्राउटिंग पीरियड। तो ये उन्होंने कहा कि ये इस वक्त सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है, मतलब कि नई नई पत्तियाँ कोमल की ग्रोथ होती है टी गार्डन में, टी प्लांट्स में। तो इसलिए यहाँ पे फ्लश वर्ड यूज़ किया गया है कि ग्रोथ के लिए। इजंट इट, अच्छा ये मतलब प्रश्न कर रहा है मिस्टर बर्बा। तो मिस्टर बर्बा कौन थे? हो सकता है प्रांजल के पिताजी रहे हो। तो उनसे कह रहा है कि सेकंड फ्लश स्प्राउटिंग पीरियड है ना, इजंट इट। ये यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, आपने क्वेश्चन टैग ग्रामर में पढ़ा होगा। राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये मई से जुलाई तक चलता है सेकंड पीरियड। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और बेस्ट टी प्रोड्यूस होती है। यील्ड्स मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसेस। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। लगता है तुमने अच्छा खासा होमवर्क किया है यहाँ आने से पहले, मतलब आप काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं चाय से रिलेटेड। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिताजी ने बड़े सरप्राइज वे में कहा। तो मिस्टर बर्बा को हम ये मान लेते हैं कि प्रांजल के पिताजी थे। यस मिस्टर बर्बा, जी मिस्टर बर्बा जी। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जो आपने कहा है वो सही है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जब तक रहूँगा तब तक मुझे और कुछ सीखने को मिलेगा। टी गार्डन में टी से रिलेटेड जानकारी और मिलेगी, प्रैक्टिकल मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूंगा, तो आई लर्न मोर हियर। तो इस प्रकार से ये स्टोरी भी खत्म होती है और ये पूरा लेसन समाप्त होता है। इस लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके। Thank you all for watching the video. Please take care of yourself. Goodbye and good luck. Please take care of yourselves. Up till we meet next. That's Prabhat Sharma bidding adieu. Goodbye to all of the dear students.